Okay, once again, Assalamu alaikum and good morning, everyone. Here we are going to start the new chapter, that is fifth chapter, that is interface uh, design for mobile devices. Okay, so here we are going to concentrate on different aspects of mobile devices. We are going to focus on mobile devices. Okay, like mobile devices in the sense that mobile, every aspect of mobile. Okay, like let me show you the content of the syllabus in the fifth chapter. That is, we're going to learn about the mobile ecosystem first. Okay, and before ecosystem, we'll take a brief history of mobile phone, that how the evolution of the mobile phone has been done. Started from the brick phone era, then candy bar era, then featured phone, then smartphone, and the latest one is the modern phone. Okay, so simply we can call them as a generation, as we have done in the 1G 2G 3G, तो वो सारा जो हम लोगों ने किया था, तो वैसा यहाँ पर हम लोग जनरेशन वाइज जा सकते हैं. The first one is the brick era, candy bar featured for smartphone touch era. Okay. Then we'll learn about the mobile ecosystem. What are the different components are there? What are the different components in the mobile ecosystem? That is the services, then application framework, operating system उसके अंदर का, then platforms, then devices, aggregators, network, वो सब लास्ट के पॉइंट नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही करेंगे. Then we learn about the operators, then networks, then devices, then platforms, then licenses, proprietary, open source, operating system, application framework. Application framework are different application frameworks are Java, S60, Vue, and Flashlight, Windows Mobile, Cocoa Touch, Android SDK जो हम लोग यूज़ करते हैं, Web Runtimes, WebKit, applications लास्ट में, services. उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है मोबाइल इंटरफेस डिजाइनिंग रूल्स. ओके, सो दीज आर द यूनिक रूल्स विच वी हैव टू फॉलो वाइल डिजाइनिंग द मोबाइल का इंटरफेस. देन मोबाइल एप्लीकेशन के जो टाइप्स होते हैं, वो अलग अलग टाइप्स कौन से हो सकते हैं. एसएमएस, आप एप्लीकेशन जो बना रहे हो एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल आपने यू हैव मेड सम चैट एप्लीकेशन. If you have made some chat application, then in that it will fall under the category of SMS. And if you're making some sort of website, then it's a mobile website. Then mobile web widgets, then it is a kind of widget. It may be a kind of application. It may be kind of an application, then native application or games. Okay, so your application, whatever you are designing, may fall under any of the category. SMS, mobile website, mobile web widgets, then mobile web application, native application, games. Then your mobile as a medium. Okay, so mobile's unique benefits, mobile information architecture, keeping it simple, sitemaps, click stream, wireframes, prototyping, paper prototyping, context prototyping. Okay, so all these comes under this mobile information architecture. Okay, with the help of these components only, your mobile information architecture will be formed. After that, we have next topic, that is mobile design. Okay, the elements of mobile design, that is context, message, look and feel, layout, color, color fit app, color, psychology of the color, then typography that we have already learned, graphics, then mobile designing tools. So different mobile designing tools are available. Like we can make use of the Photoshop, then we can make use of the NetBeans, Flash. Like these tools we can use, and that's all. ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको बताया इसके लिए कि so that you will come to know कि this is the, this is the familiar topic. Okay, this is the familiar topic, and you all can you all can understand about the topic at least first. Okay, so let us start with the first one, that is so these are the content we have already seen, and now we'll go to the brief history of the mobile phone. Okay, so obviously your telephone is undoubtedly one of the greatest invention of mankind right now, because from this particular device we can have a communication. It revolutionized the communication. Okay, we can reach to the person who is far away from us. We can share our thoughts, we can share our ideas, we can share our dreams with the fellow man. Okay, and we can make the world much smaller. Okay,
and we can do a lot of things right now, because in the modern phone or in the touch era right now, whatever we are using, so it is having a lot of features. From that you can make use of it, and you can benefit with it. So initially it was used basically for communication, basically communication for the with the person who is who is away from us, okay, so we can communicate. So basically it was started in the military or the defense, where the people can use it and they can communicate with it, and they will let each of them know about the status of the area. So like that, the initial use was that on. पहले ऐसा होता था कि जो मिलिट्री वाले डिफेंस वाले होते थे, वो अपने यूज़ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए काफ़ी सारे इन्वेंशन करते थे, जैसे लाइक जो कम्युनिकेशन है, वाईफाई है, सॉरी वाईफाई नहीं है बट वॉकी टॉकी है. So all these inventions were initially given by the military and defense department. Okay. In fact, the telephone is probably one of the most defining technology of the 20th century and the most commonly used electronic device in the world today. So these three paragraphs, these three statements, I thought this is very very important, so I kept it in the slide. Everyone, please let me know whether I'm audible properly. अभी आवाज आ रही है बराबर, मुझे बताओ. Okay. Even that cracking sound is coming, so don't worry about it. But yes, air. Wow. Pranali, is it the decoded one? या आपका मोबाइल, मुझे मुझे लगा कि शायद आपका मोबाइल उसको डिकोड करके भेजता है, एनकोड करके भेजता है, मुझे यहाँ पे डिकोड करना. Okay. So the evolution of devices. Okay, so as I told you that mobile technology has gone through many different evolutions. Okay, जहाँ पर हम लोग आज हैं, तो वहाँ पर आने के लिए सालों लग गए हैं, and you know about it. Okay? And in the industry, we often refer to these evolution as a generation, as we have seen in the generation of आपका 1G, 2G, 3G, whatever we have seen in the telecommunication generation. That generation we call it as a telecommunication generation, and this is the devices generation. Okay, so we will simply call them as a G. Okay, instead of generation, we will call them as G. This is not a this topic is not included in your syllabus, but still I thought कि ये include होना चाहिए. एंड हालांकि सबको पता है कि पहले स्टार्टिंग में एक डब्बा फ़ोन हुआ करता था, उसके बाद में फिर थोड़ा बड़ा फ़ोन आया. ये जो वाला है ना, कैंडी बार फ़ोन, ये वाला हम लोगों ने यूज़ किया है. ये जो दिख रहा है आप लोग को, नोकिया वाला, ठीक है, नोकिया वाला फ़ोन था. तो वो यूज़ हमने ऐसा किया है, घर में एक फ़ोन था खाली, ठीक है. और चार्जेस तो पूछो ही मत. चार्जेस, एक एक कॉल के चार्जेस आपको कम से कम 4-4, 5-5 रुपये एक एक कॉल के चार्जेस लग जाते हैं. बहुत महंगा पड़ता था. सो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से, दैट इज ब्रेक एरिया. मैंने एक्चुअली स्लाइड इसके लिए ऐड किया हूँ, सो दैट यू विल गेट सम आइडिया अबाउट दीज डब्बा फोन्स, स्टार्टेड फ्रॉम द डब्बा फोन and reach it up to the modern phone. The first era, that is one I call the break era, that is the range or the year 1973 to 1988. The Motorola Dynatac. Okay, it is an abbreviation of Dynamic Adaptive Total Area Coverage. The name of that phone was the Motorola Dynatac 8000X. It was the first mobile phone to receive the range, okay, in 1983. Okay, so that was the break era. Okay, the second was candy bar era. देखो आपको देखते से लग गया ये मोबाइल फोन आपका नोकिया का है. अच्छा, ये दिखने में आप लोग को छोटा लगे, लेकिन ये काफ़ी बड़ा फ़ोन था, जो लग रहा है आपको, लेकिन ये काफ़ी, मतलब अगर देखा जाए तो 9 to 10 इंचेस का फ़ोन रहा होगा ये. द सेकेंड era the candy bar era started from 1988 to 1990, represented one of the more significant leaps in the mobile technology, because this is it was the one from which you can send the SMS also. because जो पहले वाला हमारा था, इससे खाली कम्युनिकेशन. ओके, अच्छा, इसके अंदर भी बहुत सारा you will find
आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी। इन द इनिशियल डेज वी कैन ओनली टॉक इन वन वे, लाइक वॉकी टॉकी है ना, जैसे कि होता है ना वॉकी टॉकी था, आज हमारे यूसुफ मुल्ला सर लेके घूमते हैं पूरे कैंपस में। सो दे कम्युनिकेट विद ईच अदर हु आर हैविंग द सेम काइंड ऑफ डिवाइस। सो कैसे बात करते हैं उन लोग, दे प्रेस द बटन एंड दे टॉक, ओके। सो दैट वॉइस गोज टू द receiver, the person who are carrying that particular kind of device, okay। सो उनको आवाज़ सुनाएगी, फिर उनको उनको कुछ बोलना है तो वो बटन प्रेस करके बोलेगी, ओके। तो ऐसा ऐसा टाइप का था स्टार्टिंग में वो आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंप्लेक्स सिस्टम था। उसके बाद में फिर आपका डुप्लेक्स सिस्टम आया। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज आपके ब्रेक फ़ोन में आती थी। उसके बाद में आपका कैंडी बार एरा, द सेकंड एरा, उसका जो हम लोगों ने देखा उसकी रेंज 1988 टू 1999। And this era did not just enter in the portability. So basically, we can port it from one location to another location. But for the first time, people started to realize that mobile phones could do more than making a voice call also. ओके, सो सिर्फ बात करने के बजाय हम लोग कुछ और भी काम ऐसे कर सकते हैं, कुछ मैसेजेस वगैरह भी भेज सकते हैं, सामने वाला मैसेजेस रिसीव कर सकता है, दे कैन रीड द मैसेज एंड दे कैन अकॉर्डिंगली दे कैन रिप्लाई। तो कैंडी बार फोन्स कॉमनली एसोसिएटेड विद द 2G सिम। अब देखो यहाँ पर आपकी वो वाली इन्फॉर्मेशन भी काम आएंगी, व्हाट वी हैव लर्न इन द MCC, ओके। सो हमारा जो 2G था सिस्टम, दैट वाज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जो कि हमारा GSM बेस पर था। उसके अंदर SMS की इंफॉर्मेशन, SMS की एक सर्विस डाले, SMS की कैपेबिलिटी डाली। सो द कैंडी बार फोन्स यू कैन सी द फीचर्ड फ़ोन। ये वाला फ़ोन आपको मैंने कल ही बताया कि जो फ़ोन है, थी परसों बताया कि दिस फीचर्ड फ़ोन, इसके अंदर मुझे जहाँ तक याद है 16 MB की, 16, हाँ 64 MB, 64 MB का इंटरनल स्टोरेज था। मेरे पास फ़ोन था ये। तो उसके अंदर उस टाइम पे म्यूज़िक सुनते थे, उस टाइम पे मतलब जो भी मतलब फ़ोटोज़ वगैरह रखते थे। सो यू नीड टू कंप्रेस योर फाइल्स इन सच अ वे दैट के आपके पास में बहुत शॉर्ट स्पेस है, 64 MBs है ओनली, और उतने में आपको सारा काम चलाना है, ठीक है। सो यू हैव टू कीप, बिकॉज उस टाइम पे ट्रेंडिंग भी हुआ करता था, यू नीड टू यू द पीपल यूज टू कीप लॉट ऑफ वीडियोस, लॉट ऑफ म्यूजिक्स एंड लॉट ऑफ पिक्चर, लाइक वॉलपेपर्स, एब्स्ट्रैक्ट टाइप, ये वाला टाइप, वो वाला टाइप, हर तरह की चीज़ें उनको अपने मोबाइल फ़ोन में चाहिए। तो उस टाइम पे नया नया शौक था, तो ये सारी चीज़ें रखना भी है और स्टोरेज कम भी है, तो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हुआ करती। सो आई यूज टू कंप्रेस ईच एंड एवरी फाइल इन सच अ बजट पे, जितना कंप्रेस हो सकता है कंप्रेस है। सो लिटरली अगर 5 MB की अगर एक म्यूजिक फाइल है, ऑडियो फाइल है, तो उसको कंप्रेस करके मैं 200 KB 250 KB तक लेकर आती हूँ, ताकि मैक्सिमम म्यूजिक्स एंड अदर वीडियोस एंड अदर मल्टीमीडिया कंटेंट कैन बी प्लेस्ड एंड कैन बी स्टोर्ड इन द फोन। तो उस टाइम की बात है। तो दिस इज आई थिंक मोटो रेजर, ऐसा 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 कुछ इसका नाम था, मोटो मोटो रेजर ही था शायद। मोटो रेजर नहीं था, ये कुछ दूसरा और था, मोटो रेजर से थोड़ा हट के था। वो थोड़ा सा मतलब अच्छा भारी फ़ोन था। Up to this point, mobile phone had done three things like making voice call, send text messages, and play the snake game. अच्छा, ये वाला जो अपना आपका जो नोकिया वाला गेम था, सॉरी नोकिया वाला फ़ोन था, नोकिया वाले के पास में एक गेम पहले से है, स्नेक वाला गेम, यू ऑल नो अबाउट। सो इतना इतना काम हुआ था। अब इसके आगे कुछ और काम भी कर सकते हैं हम लोग। फीचर्ड फ़ोन के अंदर हम लोग ने कुछ और काम करना सीखे, like featured phone era opened the floodgate to a variety of applications and services of the phone, like listening to music, taking photos, and introduce the use of internet on the phone, okay। तो ये तीन काम आप लोग और करने लगे, other than those three work, so you would be able to do in the featured phone era। so ये तीन काम हमारे पास में और इंक्लूडेड। So during this era, GSM network provided added GPRS, that is General Packet Radio Service। As I told you that के GSM के अंदर ऐड किया गया GPRS, तो वो क्या बन गया था आपका, it was termed as 2.5G, और it is the halfway between 2G and 3G, okay। So this network evolution is most often referred to as a 2.5G, okay? So with the help of this GPRS services, your this featured phone
were capable of using the internet in the phone. Okay? तो ये कुछ फीचर्स आए आपके फीचर फ़ोन में। फिर उसके बाद में स्मार्टफ़ोन आया। ये बहुत भारी फ़ोन थे। उस टाइम पे इसके अंदर आप इसका इतना बड़ा फ़ोन हुआ कर अलग-अलग इसको अलग-अलग कंपनीज़ ने निकाले हैं, जैसे कि पाम वन है, दूसरी कंपनीज़ हैं, लोगों ने फ़ोन निकाले एंड वी आर हैविंग द QWERTY कीबोर्ड आल्सो इन दैट। ओके। और उससे भी काफ़ी कुछ काम हो जाता था। यू कैन चेक योर मेल्स आल्सो। तो ऑफ़िस ऑफ़िस वाले बड़ा यूज़ करते थे इसको। ओके। कि उनका एक तरह से छोटा-सा लैपटॉप हुआ करता था। The smartphone era occurred at the same time as the third and fifth eras and spanned from around 2002 to the present right now. So I think अभी कुछ सालों पहले ये अ, कौन हुआ था? Okay. So although smartphones have all the same capabilities of the feature phone, like you can make a phone call, you can send a message, you can take a picture, you can access mobile web. Okay, most smartphone are distinctive in that they use a common operating system. अब जब यहाँ पर operating system की बात भी चलने लगी, because यहाँ पर आपका जो था इसके अंदर थोड़ा कुछ एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया था। लार्जर स्क्रीन साइज, क्वालिटी कीबोर्ड और स्टाइलस फॉर इनपुट। ओके, उसमें उनके पास में स्टाइलस भी हुआ करता था। स्टाइलस के बिना यूज़ नहीं करते थे। The mobile phone which I having today in this particular era, so we can make use of our feather. Okay, तो हम लोग उसको easily यूज़ कर सकते हैं। बट उस टाइम पे उसको स्टाइलस से ही यूज़ कर सकते हैं। अभी कुछ कुछ जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सैमसंग वाले ने निकाला था, तो नोट सीरीज़ निकाला था स्टार्टिंग में, सैमसंग गैलेक्सी नोट 2, नोट 3, नोट 4, नोट 5। उसको अपने साथ में स्टाइलस देता है। ठीक है? अभी अभी देता है कि नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट पहले देता था स्टाइलस। तो स्टाइलस भी साथ में आने लगा, सो दे कैन इजीली ऑपरेट द मोबाइल फ़ोन। बिकॉज़ बड़ी स्क्रीन है, ज़्यादा कंटेंट है, तो उसके अंदर उसको चेक करना, देखना, यूज़ करना। Wi-Fi or another form of high-speed wireless connectivity was also introduced in this kind of phone, that is smartphone era. लास्ट वाला द टच एरा। लास्ट एरा इसको हम लोग मॉडर्न एरा भी बोलते हैं, टच एरा भी, या फिर इसको मॉडर्न फ़ोन भी बोलते हैं। ठीक। सो ये आपका आई थिंक कौन सा है पता है? आईफोन। कौन सा है, कौन बताएगा? आईफोन 2 है, 3 है, 4 है? सबसे पहला वाला या उसके आसपास वाला है? हाँ, कीजिए, वो फयाज ने यूज़ किया ना। तो ओके, सो ये आपका टच एरा है ना। आई थिंक देयर इज नो नीड टू से एनीथिंग अबाउट दिस टच एरा, दैट व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स व्हिच आर देयर इन दिस टच एरा। ओके, कैसे यूज़ करना है, क्या है, वगैरह वगैरह। सो ये सारा आपका इवोल्यूशन था, जिसको हम लोग जनरेशन बोल सकते हैं। एंड लेट अस एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज द ब्रिक एरा, कैंडी बार एरा, फीचर्ड फ़ोन, स्मार्टफ़ोन एंड देन टच एरा। तो ये आपका इवोल्यूशन था, कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने इसके लिए। ओके, now coming to the actual topic, let me show you the syllabus. See, the syllabus is starting from mobile ecosystem, but we have gone through the evolution from the mobile phone। हम लोग को पढ़ना था, because थोड़ा सा उससे हम लोग का एक थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा माइंड, because we are going to concentrate on the mobile phones only। Okay, because we are going to concentrate on the interface designing of mobile devices। So we must learn about the mobile devices, that how what are the different evolution and how it works, what are the different components, the ecosystem। तो पहले थोड़ा बहुत उसके बारे में एक बैकग्राउंड क्लियर हो गया। ओके, so this is the diagram for mobile ecosystem। Mobile is an entirely unique ecosystem, and like the internet, it is made up of many different parts that must all work seamlessly together। Okay, so we can also say that कि these all are the components of mobile ecosystem। Okay, आपका मोबाइल फ़ोन, उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स, ये सारे पार्ट्स आप लोग को मिलेंगे। So you can count the components of mobile ecosystem as a services, application, then framework, operating system, platforms, devices, the networks, operator। ये सारी चीज़ें सारे आपके
ecosystem में आते हैं, that is basically the components. Okay, so let us start with the first one, that is operator. यहाँ से मुझे लगा नीचे से स्टार्ट किया भाई सभी। तो ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स से मुझे आप बता सकते हैं, कैन समवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय द ऑपरेटर? व्हाट इज ऑपरेटर? अरे कोई तो बताओ। तो आप लोग यहाँ ये प्रॉब्लम होता है। नेटवर्क सर्विस, ऑपरेटर नेटवर्क सर्विस। और इफ़त की भाग जाती है जब भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो इफ़त चली जाती है। ओके, और क्या बोला? एग्जाम्पल जियो एयरटेल एक्स्ट्रा, वेरी गुड। Coming to the first one, that is operator. Okay, first, before reading this one, let me show you what are the different world. These are the world largest mobile operators. This is the screenshot I've taken out from the reference book. So just have a look. These are the operator. China Mobile, इसके देखो सब्सक्राइबर कितने हैं, इन मिलियंस है, 436.12 मिलियन। ओके, और इसकी जो रेंज है वो कहाँ कहाँ पर है, इसका जो मार्केट है हांगकांग एंड पाकिस्तान। चाइना मोबाइल, तो पाकिस्तान में भी चाइना मोबाइल चलते हैं, मतलब जो चाइना मोबाइल का जो ऑपरेटर है वो चलता है इस कंपनी में। वोडाफोन, वोडाफोन का यू कैन सी काफ़ी जगह पर है इसका, वर्ल्ड वाइड यू कैन सी यूके, जर्मनी, इटाली, फ्रांस, स्पेन, रोमानिया, ग्रीस, पोर्चुगल, नीदरलैंड और भी बहुत सारे हैं, तो रीड नहीं कर सकते। और इसकी जो टेक्नोलॉजीज़ अलग-अलग है, दैट इज़ जीएसएम है। जीएसएम में आपका जीपीआरएस ऐड की है, जीपीआरएस ऐड करके उसके बाद में फिर ये जो 2G टेक्नोलॉजी थी वो थी आपकी एज टेक्नोलॉजी, है नो इन अर्लियर टाइम्स व्हेन वी यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट, तो उस टाइम पे आपका ई लिख के आता था, ई, और उस पे एक एरो अप और डाउन सिंबल लिख के आता था, तो वो आपका एज नेटवर्क हुआ करता था। उसके बाद में आपका एच एस डी पी आया, दैट इज हाई स्पीड डेटा पैकेट एक्सेस करके। तो एच एस पी डी में थोड़ा सा आपको स्पीड ज़्यादा मिलने लगी, वहाँ पर एच लिख के आता था, एच के ऊपर एरो मार्क अप और एरो मार्क डाउन, तो उनके अलग अलग सिंबल्स आते थे। तो वोडाफोन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेटर, मोबाइल ऑपरेटर, जो कि जिसके 260 अराउंड 260 मिलियन सब्सक्राइबर है। ये भी तब का डेटा है जब हमारे पास में, मतलब ये अराउंड, जब ये बुक आपकी छपी थी अराउंड आज से 15 साल पहले, 10-15 साल पहले ये डेटा है। ठीक है, अब सोचो इतने लास्ट 10 ईयर्स के अंदर काफ़ी बूमिंग हुई है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे सब्सक्राइबर बढ़ गए। देन यू कैन सी, एक बार हम लोग जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं, बिकॉज हम लोग उसको डीप में तो जाना है नहीं। चाइना मोबाइल, वोडाफोन, ये कुछ और एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक कुछ और ऑपरेटर है जो कि हम लोग को पता नहीं। अमेरिका, अमेरिका मोबिल, देन टेलीनॉर। टेलीनॉर भी आपका काफ़ी यूज़ हुआ था, बीच में आया था इंडिया के अंदर, बट ज़्यादा यूज़ हो नहीं पाया। टेलीनॉर, यूनिनॉर, अलग अलग नाम से आया था। दैन उसके बाद में चाइना यूनिकॉम, दैन टी मोबाइल, दैन उसके बाद में ऑरेंज। ऑरेंज बीच में काफ़ी चला था, ऑरेंज अर्च वगैरह इनके कॉम्बिनेशन के साथ में। दैन एम टी एस, दैन एम टी एस का एक फ़ोन भी आया था। एम टी एन ग्रुप, ए टी एन टी, भारती एयरटेल। वाह, हमारा जो प्रिय, हमारा फेवरेट वन जो है एयरटेल, जो कि हमारे इंडिया का है, इंडिया का है। भारतीय एयरटेल इंडिया का है या कहीं और का है? कोई बताएगा मुझे, भारतीय एयरटेल इंडिया का है या कहीं और का है? अरे बताओ ना, एयरटेल इंडिया का है या इंडिया का है पक्का? एयरटेल बाहर का है, एयरटेल बाहर का है। आई थिंक आई हर्ड फ्रॉम समवन, ये ऑपरेटेड बाय मित्तल कंपनी। तो बैरल बाद में सर्च कर लेंगे, लेकिन मुझे किसी ने तो बताया था कि आई थिंक इसराइल वगैरह का मतलब के कंट्री का है। ओके, सो इसके अंदर और भी है लाइक सिंगटेल, टेलको, ये हमारे काम के लिए, बट इसमें से हम लोग कुछ के जो हम लोग जानते हैं, दीज आर दी वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर। ओके,
अपने को इनके सब्सक्राइबर कितने हैं और इन्होंने टेक्नोलॉजीज क्या क्या रखी। The base layer in the mobile ecosystem is the operator. So they have started from the base. Okay. So the first component of the mobile ecosystem, the first component is operator, because operator के base पर ही जाकर आपका सारे devices, अगर अगर operator ही नहीं है तो आपकी mobile phone होके क्या फायदा। ऑपरेटर गो बाय मैनी नेम्स, एज यू कैन सी बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम इन लोग चलाते हैं। डिपेंडिंग ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू हैपन टू बी इन और हु यू आर टॉकिंग। ठीक है, चलो यहाँ जो अगर सेम ऑपरेटर से मैं बात कर रहा हूँ और वहीं पे उसका कुछ और नाम है, ऐसा भी हो सकता है। एक्चुअली आई हैव टेकन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेटर, मुझे इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना थी बट मैंने कंप्लीट निकाला। Operators can be referred to as a mobile network operator. तो MNOs भी इनको बोल सकते हैं। Operator can also be referred as the MNOs. मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर भी बोलते हैं, वायरलेस कैरियर भी बोलते हैं और सिंपली कैरियर भी बोलते हैं। मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स और सेलुलर कंपनीज के बहुत सारे नाम हैं। Operators are what essentially make the entire mobile ecosystem work, because if there will not be an operator, then how you will communicate, how you can communicate and how you will be able to use the different services, because this is the one which is providing you the different kind of services on the move. Okay, आपको याद होगा on the move word। चलो ठीक है। They are the gatekeepers to the kingdom. They install cellular towers, operate cellular network, make services such as the internet आपको provide करता है, तभी जाकर आप लोग मोबाइल के ऊपर कुछ देख पाते हो, इंटरनेट एक्सेस कर पाते हो, सर्च कर पाते हो। They often maintain relationship with the subscriber, handling billing and support. So all these things are being done by the operator. Coming to the next component, that is network. अब नेटवर्क के बारे में आप लोग तो देख लो यहाँ पर 2G 3G। अभी भाई साहब 2G और 3G के बाद में उस टाइम पे आया ही नहीं था, तो बेचारा क्या लिखेगा 4G और 5G के बारे में। तो 4G तो अभी कुछ सालों से आया है और 5G आपका अभी जस्ट लॉन्च हो रहा है या फिर अभी जस्ट आ रहा है। ठीक है, सो दे डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दी 5G एंड 4G, दे हैव इंफॉर्मेशन अबाउट 2G ओनली एंड 3G ओनली। सो 2G में हमारे पास में GSM है, GSM के अंदर GPRS ऐड किए। ओके, तो वो बन गया आपका 2.5 GSM, इनकी स्पीड के साथ में है। तो GSM टेक्नोलॉजी, GPRS टेक्नोलॉजी वर यूज, एज टेक्नोलॉजी जिसको मैंने बताया आप लोग को ई लिखते हैं, देन बाद में HSCSD या उसके बाद में लिखते हैं उसको HSPSD भी लिखते हैं, दैट इज हाई स्पीड पैकेट डेटा एक्सेस करके HSPDA करके लिखते हैं। ओके, तो आई थिंक वो नीचे का ही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर नीचे लिखा है HSPDA यानी कि हाई स्पीड packet access, high speed downlink packet access and uplink packet access. So this is the mobile network. So operator operate wireless network, and remember that cellular technology is just a radio that receives a signal from one antenna to another antenna. So just a short uh, about the networks, in different types of networks है आपके regarding this 2G and 3G. Then coming to the next one, that is devices. थोड़ा सा वापस से एक बार देखते हैं, ऑपरेटर, नेटवर्क, उसके बाद में आज हम लोग डिवाइसेस पे। एग्रीगेटर्स को हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया है बिकॉज दैट इज अ कॉमन पार्ट। सो regarding the devices, let us focus on the biggest slice of the device pie, that is mobile phone. You can see um, mobile devices around the world. You can see the pie chart. In this pie chart you will find as of 2008 there are about 3.6 billion mobile phones currently in use around the world. Just more than half the planet population has a mobile phone. Okay, तो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन के पास में है। ये मतलब रीजन बताया है पहले पाई चार्ट के, तो रीजन बताया ना। आफ्टर दैट फीचर फोन, स्मार्टफोन, मतलब कि जो डिवाइसेस किन के पास कौन से डिवाइसेस हैं वो बताएं। ये 2008 का डेटा है। ठीक है, अब 2008 से आप लगा लो 12 साल तो ऐसे ही हो गए। ठीक है, 12 भी 13 साल तो हो गए, तो 13 साल में काफ़ी कुछ बदल गए। So most of these devices are featured phone, making up the majority of the marketplace. And if the people are having featured phone, feature phone कौन सा था एक बार देख लेते हैं। तो फीचर फ़ोन हमारा है ये वाला फ़ोन, जिसके अंदर हम लोग म्यूज़िक भी सुन सकते हैं,
और मतलब ये 2008 की बात है। तो म्यूज़िक भी सुन सकते हैं और पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं और वेब भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये सारे काम अगर यूज़र कर सकता है, सो दे रिक्वायर्ड द नेटवर्क ऑपरेटर्स ऑल्सो, और उनको फिर अच्छे डिवाइसेस भी चाहिए। ठीक है, ये सारे काम वो कर सकता है बेसिकली। स्मार्टफोन smartphone market share is growing with the introduction of the iPhone and devices based on the Android platform। कोई बताएगा मुझे एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन से ईयर में आया, या कब से फ़ोन आने लगे? अरे बताओ, वो बताएंगे मुझे देखना पड़ेगा। एंड्रॉयड कब से आया? कोई बता नहीं। 2000 2000, आई गेस 2000। 2000 में नहीं आया शायद, थोड़ा सा लेट आया। बहरहाल। अरे वाह। 2010 भी नहीं आया, बिकॉज देखो 2008 में मैं था। नहीं, हाँ, 2010 में 2009 में मैंने वो लिया था, एक मोबाइल फ़ोन लिया था। आई टोल्ड यू अर्लियर दैट आई बॉट वन फ़ोन दैट इज़ LG Optimus P500, मुझे इसका मॉडल नंबर तक याद है। सो आई बॉट दैट फ़ोन इन 12,500 रुपीज़। इट वाज अ यू नो स्मार्टफ़ोन, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड मोबाइल फ़ोन था, एंड इट वाज हैविंग देयर बैक बटन, देयर सर्चिंग की, है ना, उसकी जो बटन्स थे वो हार्ड बटन्स थे। और उसमें था आपका इक्लेयर से पहले 2.1 ना, इक्लेयर, इक्लेयर से पहले कौन सा था? डोनट आई थिंक ना, डोनट था ना, ABC। हाँ, इक्लेयर से पहले डोनट था। सो डोनट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज देयर। ओके, मुझे भी अच्छी तरह याद है, मैंने 6 महीने में जाके सर्विस सेंटर के पास जाके मैंने उसको अपग्रेड किया था, इक्लेयर पे आया था। तो आई मीन टू से दैट कि 2008 में तो 2009 में मेरे पास फ़ोन था, सो इट मस्ट बी अराउंड 2005 के आसपास। ओके, सो व्हाटएवर इट इज, तो हम लोग जस्ट एक बार थोड़ा वो कर रहे थे, कोरिलेट कर रहे थे। सो अराउंड 2005 के आसपास में ये आया है, ठीक है। तो या फिर 2000 और 2005 के आसपास में आया है, हो सकता है वो इतना रेपिटेड मतलब नहीं हुआ था, रेपुटेशन बाद में मिली। So as next generation devices becomes a reality, the distinction between feature phone and the smartphone will go away। Obviously जब next generation आएगा तो obviously आपके पिछले वाले निकल जाएंगे। Most mobile phone devices are subsidized in some form or other। अभी तो हो ही रहा है अभी। Operators sell devices at the severely discounted price often। आज मेरे देखा मैं नीचे, तो मोबाइल शॉप पर ऐसा वाक़या था कि लोन पे फ़ोन। ओके, आई थिंक आप लोग ने भी देखा होगा। तो इट इज़ मच ईज़ियर टू बाय अ फ़ोन। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ यू कैन, आपको पे करना है हर महीने, आपको 2000 रुपये पे करने, पे करते जाओ। कितने का फ़ोन है? 20,000 का फ़ोन है। अच्छे-अच्छे लोग फ़ोन ले रहे हैं। मज़दूर से मज़दूर आदमी फ़ोन ले रहे हैं, ठीक है? वो भी 15-20,000, इतना 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 महँगा फ़ोन ले रहे हैं। आप ये देंगे आराम से 2-2 हज़ार रुपए, 3-3 हज़ार रुपए हर महीने देंगे, ठीक है? तो 1 साल के अंदर आराम से कवर कर लेंगे। एक एक मतलब 1 साल भी लगेगा नहीं, वो आराम से उनका कवर हो जाएगा। सो एवरीवन इज़ हैविंग मोबाइल फ़ोन। This enables the operator to lock the devices to their network। ओके, एंड बहुत सारा मतलब बहुत से टाइम पे ऐसे भी होता है कि द स्मार्टफोन और द मोबाइल फोन आर लॉन्च विद देयर नेटवर्क ऑल्सो, विद द ऑपरेटर ऑल्सो, कि भाई आपको इसके साथ में इतना इतना ऐसा ऐसा स्कीम मिलेगी, तो स्कीम के साथ में आदमी बह जाता है। सो दिस इज द डेटा। We'll stop over here because the time is 10:49। ओके, सो क्या देखा हम लोगों ने आज? कुछ ज़्यादा नहीं देखा। We have started the chapter number 5, that is interface design for mobile devices, and this is the content। We have seen the brief history of mobile devices, that is the evolution, or we can simply say the generation of mobile devices। 1, 2, 3, 4, 5, that is the brick era, candy bar,
फीचर्ड फोन, स्मार्टफोन एंड टच एरा। ओके, सबकी इन्फॉर्मेशन देखा हम लोगों ने। देन आफ्टर वी स्टार्ट विद द मोबाइल इकोसिस्टम, स्टार्ट विद द ऑपरेटर। ऑपरेटर के हमने डिफरेंट वर्ल्ड बिगेस्ट ऑपरेटर देखे, उनके सब्सक्राइबर देखे। देन देयर नेटवर्क्स, networks technology, that is 2G 3G only. In 2G we're having GSM, GPRS, Edge and HSCSD। okay, सर्किट स्विच नेटवर्क था, बाद में पैकेट डेटा है। सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो पढ़ा हो। Then about devices, okay, we'll see the platform tomorrow. Okay, tomorrow, Friday, on Monday. Okay, so let us stop the recording first.